अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। શ્રીમદ રાજચંદ્ર કેવું ડેવલપમેન્ટ લઈને આવ્યા હતા કે કરોડો રૂપિયાનો સોદો કર્યો અને એ સોદાની અંદર એમને કરોડો રૂપિયા મળવાના હતા કે લાખો રૂપિયા જે બહુ મોટી અમાઉન્ટ મળવાની હતી, પણ એમને કીધું કે ભાઈ આ આપી શકે એવો છે નહીં ને એનું આખું જીવન બરબાદ થાય, ફેમિલી લાઈફ આખી. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર કોઈ તારીખ મારી વચ્ચે સોદો તો ખાલી કાગળનો છે, પાડી નાખો. તો આ ક્યાંથી લાયા? એમની સરળતા લઈને આવ્યા હતા. તીવ્ર લોભ નતો, જરૂરિયાત હતી લક્ષ્મીની, પણ લોભ નતો. એટલે ફાડી નાખ્યું કાગળિયું. મારું જીવન તો ચાલવાનું જ છે, આ સોદો કેન્સલ થશે તોય ચાલવાનું જ છે. એટલે એના ડેવલપમેન્ટનો ઉપયોગ એને પહેલાની તકલીફ પડશે એમાં ગયા અવતારમાં કર્યો તો ઉપયોગ, એટલે આ રિઝલ્ટ આવે. આ અવતારમાં તો ઉદય કર્મ છે, તો કરેક્શન સોફ્ટવેરમાં કર્યું હતું એટલે હાર્ડવેરમાં આવ્યું. અને એ પાછો એને વિચાર આવ્યો ને કે હું જો આ સોદો કરીશ તો સામેના માણસને કેટલી મુશ્કેલી પડશે. હા, પણ આ બધું લઈને આવ્યા હતા. એટલે સોફ્ટવેરમાં કરેક્શન હતું એટલે હાર્ડવેરમાં ઉતરવાનું. આજનો પુરુષાર્થ નથી, બરાબર છે, સમજાય. આજે પરિણામ છે, પણ દુનિયાને તો ઇતિહાસની જરૂર છે. દુનિયાને તો કોઝની જરૂર નથી, ઇફેક્ટ. ઇફેક્ટ વિઝિબલ ને ફિઝિબલ છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? કોઝ કોઈ જોઈ શકતું, આપણે જવાબ ઉપરથી રકમ ખોલવાની કે કરેક્શન ત્યાં હતું, એનું રિઝલ્ટ. આજે દાદા ભગવાનનું જીવન નાની ઉંમરથી એકદમ સાદગીવાળું, સરળ, લોભ નહીં, ખ્યાલ આવ્યો? અને આખો ઉપયોગ એમને સાધન સંપત્તિમાં ના નાખ્યો. ઇવન તો બિઝનેસમાં પણ એટલો સમય આપતા નહોતા. એ આખું ફોકસ એમને પાડ્યું આધ્યાત્મમાં, અને આખું આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. આપણને લાગ્યું કે આ દાદા ભગવાનનો પુરુષાર્થ છે. ના, સોફ્ટવેરમાં કરેક્શન હતું, એનું હાર્ડવેર. આ જ્ઞાન થયું બધું ઉદય કર્મ છે. શું હતું? દાદા કહેતા હતા કે આ કેટલા અવતારોનું અમારું જે ભાથું છે એ આ અવતારે ખુલ્લું થયું. કે ચમત્કાર થયો નથી. એ દાદા ભગવાન એમને બટ નેચરલ કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? કેટલાક કે દાદા તમને કઈ રીતે થયું? દાદા કે કોપી કરવી છે, કોપી થાય એવી નથી, એટલે બટ નેચરલ. એટલે આગળથી ચાલી આ કરેક્શન થતું હતું, આવ્યું હતું તે સોફ્ટવેર ઓકે હતું, ત્યાં હાર્ડવેરમાં રિઝલ્ટ મળ્યું. તો લોકોને આ કામ લાગ્યું. અમને પણ આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે, એ હાર્ડવેરમાં છે પણ સોફ્ટવેરમાં ભૂલ નથી, એનું આ રિઝલ્ટ આવ્યું. સમજાય છે ને? એટલે અમે કહીએ છીએ કે આ પુરુષાર્થ નથી, આ ઉદય કર્મ છે. સમજાય છે ને? હવે આજનો પુરુષાર્થ આના કરતાં અપગ્રેડનો હોય, પણ એ ભાષામાં કે વર્તનમાં આવે નહીં. એનું રિઝલ્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશે. હવે તો કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટનું સાયન્સ કોઈ જગ્યાએ કોન્ટ્રાડિક્ટ થવું જોઈએ નહીં. તમારી ભાષામાં એને સાયન્સ કહેવાય, અને કોન્ટ્રાડિક્શન થઈ જાય તો પછી સાયન્સ કહેવાય નહીં, પછી એને રિલેટિવ સત્ય કહેવાય. બોલો, બીજું પૂછવું છે? હવે પ્રશ્ન પૂછો, આવે પૂછો. એક મિનિટ. लास्ट जन्म में वो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है, लास्ट केवल लास्ट बर्थ में जो मोक्ष के पहले का जन्म है वो प्रतिष्ठित आत्मा कैसे नहीं बनती है? वो उसके पहले ही वो ज्ञान में रहते हैं. कैसे? अज्ञान नहीं है, प्रिंसिपल समझो. नहीं, वो सॉफ्टवेयर कैसे चेंज? वही मैं कहता हूँ. पहले प्रतिष्ठित आत्मा समझो. प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है. किससे हुई? और जब अज्ञान खत्म हो गया कंप्लीटली, केवल दर्शन मतलब अज्ञान खत्म हो गया, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि रोल ही नहीं है. फिर नेक्स्ट बर्थ में बॉडी और आत्मा दो ही जाएगा. डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा. कौन सा? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, जो सर्जन करता है. ऐसे अभी नेक्स्ट जन्म में उसको जो कर्म है वो डिस्चार्ज जो रहता है उसके लिए भाव तो कर रहे होंगे ना. भाव करते हैं तो उसमें वो अज्ञान नहीं है तो भाव कैसे करेंगे? वो नेक्स्ट जन्म को आ लेंगे. वही मैंने कहा ना कि
अज्ञान नाश करते करते खत्म हो गया, मगर अज्ञान नाश करने की प्रक्रिया तक जो भी कर्म चार्ज हो गए तो उसके लिए तो बढ़ लेना पड़ेगा। मगर एक दिन ऐसे प्रोसेस करते करते अज्ञान खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो गया, मगर उसकी प्रोसेस तक जो हमने कर्म चार्ज किए थे उसका तो फल भुगतान करने पड़ेगी ना। मगर लास्ट बर्थ में फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है, तो निकालना क्या है, कुछ नहीं। और इसीलिए मैंने कहा लास्ट बर्थ में जिसका भी लास्ट बर्थ है, चाहे केवली है चाहे तीर्थंकर है, सभी को माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होता है। वो रिजल्ट के रूप में है, क्या है, और निर्वाण, केवल ज्ञान, निर्वाण सब ऑटोमोड, क्योंकि वो पुरुषार्थ तो है ही नहीं, सब ऑटोमोड, जन्म से निर्वाण तक सब ऑटोमोड। तो ये ऑटोमोड रहेगा और ये सेपरेट रहेगा बस। और ये 14 घंटाना का बात होता है ना, तो 11th से सम्यक दृष्टि होता है, 4 से फिर 7 तक 4 से 7 डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट 4 से 7 तक है, और 7 से 11 उपयोग है, परिणति, वो अप्स एंड डाउन्स होता है। अगर एक बार 11 क्रॉस कर दिया और 12 में चले गए तो फिर वापस नहीं आते। फिर 12 से फिर 13 केवल ज्ञान, 12 का मतलब होता है सहायक संकेत, 13 में केवल ज्ञान और 14 में मोक्ष। अभी 7 से 11 में डेवलपमेंट है, नीचे गिरे तो कितना वो तो आ सकता है, 4 तक आ सकता 4 है, से वो परिणति के हिसाब से। डेवलपमेंट तो हो गया, क्या बताया, डेवलपमेंट हो गया। हाँ, वो 4 नीचे आ सकते हैं। परिणति यानी क्या है? परिणति का मतलब होता है उपयोग, जो ज्ञान पाया है इसका उपयोग, वो अप्स एंड डाउन्स होता है। क्या होता है, समझ में आया? डेवलपमेंट रहता है। डेवलपमेंट तो रहेगा, एक बार पास हो गए फिर आप फिर तो नहीं हो सकते, मगर उसका उपयोग गलत कर दिया है ने। जो पावर, जो डेवलपमेंट आपको अज्ञान को नाश करने के लिए यूज करना था, वो आपने संसार में कुछ पाने के लिए यूज कर दिया। अगर अब 4 से 7 तक डेवलपमेंट का है ना, तो 7 तक डेवलपमेंट हो गया, फिर 10 में गए, 10 से गिरे तो 7 से नीचे आएंगे कि डेवलपमेंट तो 7 तक है, तो वहां तक डेवलपमेंट माइनस नहीं होगा, मगर उपयोग 4 भी जा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, यानी अज्ञानी जैसा भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए नरक में जाते हैं। अगर ज्ञानी जैसा उपयोग होता है तो नरक जैसा कर्म बांधेंगे नहीं बांधेंगे। तो उपयोग में गलती है, डेवलपमेंट में गलती नहीं है। डेवलपमेंट तो हो गया, एप्लीकेशन गलत हो गई, उपयोग समझ आया। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास पैसा है 1 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, तो ये उनकी क्षमता है, इकोनॉमिकल क्षमता, ठीक है। वो क्षमता का उपयोग अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं और बुरे काम के लिए कर सकते हैं। तो जैसा काम वैसा फल, मगर पैसे की गलती नहीं है। तो पैसा तो आपके पास है, उपयोग ऐसे ज्ञान तो है, मगर उपयोग रिलेटिव सत्य में यूज किया तो ये रिलेटिव सत्य का लाभ प्लस माइनस मिलेगा, और सनातन सत्य का उपयोग किया तो अज्ञान नाश होगा, वो आपका डेवलपमेंट है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है? वो तो कुछ हार्डवेयर में कुछ संघर्ष दुख हो गए तो तब तो हम इस ज्ञान को अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं और उससे जुदा रहते हैं। उधर अनुभव होता है, वो तो जुदा रहने का अनुभव होता है। वही अनुभव शुद्धात्मा का अनुभव है या फिर क्या होता है? शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है, वो शुद्धात्मा के प्रति अपनी दृष्टि पक्की होती है। शुद्धात्मा तो अनुभव तो लास्ट बर्थ में ही होता है ओनली, मगर आपका विजन पक्का होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट ऑफकोर्स जैसे इसके साथ कॉन्फिडेंस था, अभी आत्मा में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये आपका डेवलपमेंट है। जितना अज्ञान नाश, इतना आत्मा में कॉन्फिडेंस ज्यादा, जितना अज्ञान ज्यादा, इतना प्रकृति में कॉन्फिडेंस ज्यादा। और इसीलिए तो मैंने कहा था रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है,
और रिलेटिव सत्य ही कंफ्यूजन पैदा करता है, और रिलेटिव सत्य ही कर्मों को चार्ट करने में सहायक है। जितना सनातन सत्य समझ में आएगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अज्ञान निकलेगा और संसार की अवस्थाओं का आपको इफेक्ट कम होगा। That's it. और ये अनुभव के एक्सपीरियंस वही है अनुभव बैठना वही है। हाँ, अनुभव करना। कोई भी अवस्था में सेपरेट रहना वो हमारा अनुभव है, और अवस्था में जुड़ जाना मतलब रिलेटिव सत्य का अनुभव करना। सेपरेट मतलब सनातन सत्य, और जुड़ गए तो रिलेटिव सत्य का, यानी टेम्पररी हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, वो रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य से मुक्ति पाए मतलब आत्मा का आत्मविश्वास बढ़ा। दो ऑप्शन है, इधर रिलेटिव सत्य के अंदर आप मजबूत हो सकते हैं, या तो शुद्धात्मा के पक्ष में मजबूत हो सकते हैं। दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन। और अभी तो हार्डवेयर में कुछ क्या होता है, कुछ क्रोध भी होता है, लेकिन अंदर में होता है तो इससे जुदा मैं हूँ, इससे कुछ भी राग द्वेष कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मालूम हो रहा है। वो तो एक क्रोध हो रहा है ना, ये तो हार्डवेयर में हो रहे हैं, और उससे जुदा मैं हूँ वैसे मालूम हो रहे हैं, और ये तो ठीक है, बराबर है, बराबर है। इससे मुक्त रहना बहुत बड़ी बात। इसमें राग द्वेष होते भी है, नहीं भी होते, कोई तकलीफ नहीं, जुदा रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्चार्ज में तो रहेगा। डिस्चार्ज राम भी मारा मारी करेंगे, युद्ध करेंगे, वो डिस्चार्ज है, इसमें उसको अंदर राग द्वेष नहीं है। मगर उदय कर्म में हार्डवेयर में है, दिखता है, सॉफ्टवेयर में नहीं है। और बाहर लोग कहते हैं आप ज्ञान ले लिया है लेकिन ऐसे क्यों करते हैं, वैसे पूछ रहे हैं, वो इसीलिए कहते हैं उसको कि क्या कहना है। इसको ये कहने का है कि हमने ज्ञान लिया है, अभी पचाया नहीं है। हमने कोई चीज की खरीदी कर लिया, सब्जी की, उसका मतलब नहीं है कि हमने खा लिया, भाई लिया है हमने, अभी डाइजेस्ट नहीं किया। तो डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, तो फिर डाइजेस्ट होगा तो बीज चेंज होगा, तो फिर हार्डवेयर में भी चेंज होगा। आप समझे ना, अभी तो लिया है। लोग क्या, इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञान की जो परिभाषा है, दादा भगवान को जो उदय कर्म में ये ज्ञान विधि की बात आई उसके उदय में, और लोगों को ज्ञान दिया दृष्टि चेंज करने के लिए, और ये अच्छी बात थी, एक प्रयोग था। कलयुग में ये प्रयोग नहीं था किसी के पास, उन्होंने पहली बार ये प्रयोग बताया, ज्ञान विधि, और उसमें प्रोसेस बताई कि आपको समर्पण करना है, मन वचन काया, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, नाम और नाम की माया को समर्पण करना है, और आपके शुद्धात्मा पद प्राप्त करना है। ये समर्पण करना है भाव से, और शुद्धात्मा पद भाव से प्राप्त करना है, यानी चेंज योर विजन। फिर बाद में 1 घंटा बुलाते हैं, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, सेपरेशन। समझ में आया ना, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में है। तो ये सब जो वाक्य बुलाए थे, आनंद ज्ञान आनंद दर्शन वाला, ये बुलाते हैं, गुड एक्सपेरिमेंट, अच्छी बात है, और उनका प्रयोग बहुत अच्छा है। मगर फिर क्या हो गया, ये उनका खुद का अनुभव प्रमाण था। क्या था? प्रमाण। तो उनके पास जो अनुभव था, तो मेथड भी उनकी ही रहेगी, मेथड भी उनकी रहेगी ना, कि मेरे को ये अनुभव कैसे लोगों को बांटना है, दिस इज माय मेथड। ये उनका प्रमाण है कि मेरे को किस तरह बांटना है। मगर मैं आज उसी की कॉपी करूंगा, तो मेरे पास तो अनुभव प्रमाण नहीं है। तो मेरा अनुभव जो है वो मेरी डिजाइन से प्रेजेंट होगा, तो इसको मौलिक बोलते हैं। इसमें कंपटीशन कंपैरिजन नहीं है। राम की अपनी रीत थी, कृष्ण की अपनी रीत, महावीर की अपनी, इसमें गलती कहाँ है? हर अनुभवी की रीत अलग अलग होती है। कहीं लोग हमारे महान पुरुष ऐसे हो गए इतिहास में जो बहुत कम बोलते थे, इतिहास में हो गए ऐसे, योगी जैसे थे, साधक जैसे थे, सिंपल झोपड़ी में, दरिया किनारे, पहाड़ के ऊपर, जंगलों में रहना, शांति से जीवन जीना। कोई व्यक्ति आए, उनकी जीवन का प्रॉब्लम उनके सामने रखते थे,
तो वो 1-2 सेंटेंस में उत्तर दे देते थे। आप समझे? ये उनका प्रेजेंटेशन है उदय कर्म, मगर वो सॉफ्टवेयर में लेकर आए भी कम शब्दों में उसका समाधान होना चाहिए, तो वो उदय में आया। आप समझे? तो हर व्यक्तियों का हार्डवेयर में मिस्टेक नहीं है, सॉफ्टवेयर के आधार से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर के आधार से हार्डवेयर है। और अगर हम सॉफ्टवेयर में सेट किया है कि भी परंपरा का ज्ञान बांटना है, तो फिर हार्डवेयर में वही रहेगा। तो चलता रहता है ऐसा। हमको सिर्फ समझना है ये दुनिया में स्वतंत्रता रूप से, स्वतंत्रता से कोई करता है नहीं। आप समझे? और कर्ता के बिना होता नहीं है। भूल आज नहीं है, भूल सॉफ्टवेयर में थी, ये तो हार्डवेयर है, उसके पास चॉइस नहीं है। तो करता उस समय था, अभी तो करता नहीं है, अभी तो उसको करना पड़ता है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल है ना। हार्डवेयर क्या है? उसमें क्या पावर नहीं है करना ना करना। मगर सॉफ्टवेयर में जैसा हमने सॉफ्टवेयर डाला है कोड वर्ड, वो रिजल्ट में आता है। तो हार्डवेयर के पास चॉइस नहीं है। यस, हाँ, ખાલી એક પ્રશ્ન. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી દરરોજના જીવનમાં આપણે આત્માના ઉપયોગમાં રહેવું હોય તો કઈ રીતના રહી શકાય કોઈ પણ કાર્યમાં? सेपरेशन। मैंने बताया था ना, सुबह वेकअप होते मालूम होता है कि वेकअप कौन होता है, और मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये शरीर या तो फाइल होती है, ये बाथरूम कौन जाता है, फाइल नंबर 1, मैं शुद्धात्मा हूँ। नाश्ता कौन करता है, फाइल नंबर 1, मैं शुद्धात्मा हूँ। दिन का हर काम कौन करता है, फाइल नंबर 1, मैं। रात को सो कौन जाएगा, फाइल नंबर 1, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसे सेपरेशन का विजन रहना चाहिए। यहाँ कोई क्रिया करनी नहीं है, ये क्रिया करने वाला है, उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और ये फाइल है जो क्रिया करती है, बोलती है, सोचती है, व्यवहार करती है, ये फाइल का काम है। કોઈને દુઃખ અપાઈ જાય બધું જ. દુઃખ અપાય, સુખ અપાય, એ બધું આનું કામ છે। અને તે શું છે, હાર્ડવેર છે, એટલે એમાં ફેરફાર થાય નહીં। અને પુરુષાર્થ કરવો હોય તો આટલો કરવો કે આવી પ્રકૃતિ મારી ન હોવી ઘટે, કારણ કે આ પ્રકૃતિ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી। પછી અને પુણ્યના ક્વોલિટીના પ્રકાર કેટલા? પુણ્યના તો બહુ પ્રકાર છે। કેટલાકને જોઈને આનંદ થાય, કેટલાકને મેળવીને આનંદ થાય, કેટલાકને વાપરીને આનંદ થાય, ખ્યાલ આવે? કેટલાકને ભેગા કરવાથી આનંદ થાય, કેટલાકને વહેંચવાથી આનંદ થાય। આ બધા પુણ્યના પ્રકાર છે। ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું પુણ્ય આપણે કરવું હોય તો કયું? ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું પુણ્ય એને કહેવાય। ને હા હા હા, ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું પુણ્ય કોને કહેવાય કે જે પુણ્યથી આપણું, જે પુણ્યના સંજોગોથી આપણું અજ્ઞાન ખલાસ કરવા માટેનું આપણને જ્ઞાન મળે, એ ઉચ્ચ ક્વોલિટીનું પુણ્ય કહેવાય। બીજા બધા પુણ્ય તો ચક્કરમાં કેવા છે, ફેરવનારા છે, ચાલ્યા જ કરવા દે। પાપ અને પુણ્ય, રાગ અને દ્વેષ ચાલ્યા જ કરે, રિલેટિવ શબ્દ। પુણ્ય એવું જોઈએ કે આપણું અજ્ઞાન નાશ કરવાના સંજોગો ભેગા કરી આપે, જેના આધારે આ સાયકલ ધીમે ધીમે બંધ થઈ જાય, રિબર્થ। સોફ્ટવેરમાં કરેક્શન કરવાના જે સંજોગો છે એ આપણા માટે બેસ્ટ પુણ્ય છે। આખું જગત હાર્ડવેરને જ બદલવા પ્રયત્ન કરે, એટલે એના માટે શક્તિ માંગવી પડે, કીધું ને મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક છે, એમાં આવી જાય. આવી જ જાય।